Hello students, I'll be sending a clip along with this PowerPoint presentation on people as resources. Kindly watch the clip. It is about a debate on population. Very recently there was a debate on the national television, on the television of India. Kindly go through that debate very carefully, listen to each and every points of the debaters. It's a very interesting topic and it will help you to understand people as a resource. So let's start the chapter. Chapter number 2, People as a Resource. Overview. The chapter, People as Resource, is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training, and medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. People as resource is a way of referring to a country's working population in terms of their existing productive skills and abilities. Looking at the population from the productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of gross national product. Like other resources, population also is a resource, a human resource. This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education, and access to health facilities. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country, just like the physical capital formation. तो पॉपुलेशन, तो क्या देश की ये जो बड़ी पॉपुलेशन है वो देश के फ़ायदे में हो सकती है या देश का नुकसान करती है? अगर देखा जाए तो दोनों हो सकता है. अगर पॉपुलेशन जो है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है, उसको अच्छे से पढ़ा लिखा दिए, उसको काबिल बना दिए, सेहतमंद बना दिए, चुस्त और तंदुरुस्त बना दिए, तो ये देश के हित में हो सकता है, देश के फ़ायदे में हो सकता है. लेकिन अगर यही पॉपुलेशन अनपढ़, गँवार, बीमार रहा तो देश के एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. तो इस चैप्टर में हम जो पॉपुलेशन है उसके रिसोर्स के बारे में, यानी इस चैप्टर में हम जो देश का जो पॉपुलेशन है उसके पॉजिटिविटी के बारे में हम सोचेंगे, उसके पॉजिटिविटी के बारे में हम पढ़ेंगे. किस प्रकार से देश का जो पॉपुलेशन है वो देश के लिए फ़ायदा हो सकता है, उसके बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे. Investment in human capital through education, training, medical care yields a return just like investment in physical capital. This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of more educated or the better trained persons, as well as the higher productivity of healthier people. जिस प्रकार से हम किसी भी बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, तो हम जब पैसा लगाते हैं तो उतना ही हमारा फ़ायदा भी होता है. उसी प्रकार से अगर हम पॉपुलेशन में सही तरीके से पैसा लगाएंगे, यानी पॉपुलेशन को अच्छे से पढ़ाएंगे, जितना वो ज़्यादा पढ़ेगा उतना वो ज़्यादा काबिल बनेगा, उतने बड़े पोस्ट पर उसको नौकरी मिलेगी और उतना ही उसका इनकम बढ़ जाएगा. वैसे ही अगर हम अच्छा खान पान करेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा सेहतमंद रहेंगे, तो हमारे शरीर जो है चुस्त और तंदुरुस्त रहेगा, जो हमें काम करने में हमें काफ़ी योगदान देगा. इसलिए पैसा लगाना, पॉपुलेशन में पैसा लगाना, पढ़ाई के ऊपर पैसा लगाना, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ पे पैसा लगाना, ये कोई नुकसान नहीं, ये आपके फ़ायदे की ही बात है. India's Green Revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources.
India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery. अगर हम खेती बाड़ी के बारे में अगर हम उन्हीं का एग्जाम्पल लेते हैं तो 1960 के दौर में 1960 के दौर में या ख़ास करके 1965 के बाद में इंडिया के खेती बाड़ी में बहुत प्रगति हुई है। और ये प्रगति की वजह क्या थी? ग्रीन रेवोल्यूशन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब जो आधुनिक तरीके से खेती बाड़ी की जा रही है, जिसमें आधुनिक साधन है, जैसे कि ट्रैक्टर्स है, थ्रेशर्स है, बड़े बड़े मशीन्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ सीड्स है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ है। इसकी वजह से क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन में या खेती बाड़ी में एक बहुत बड़ा तब्दील आया है, जहाँ पर 3 गुना से भी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो वैसे ही कोई भी IT सेक्टर्स में अगर हम लेते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रिवोल्यूशन हुआ है, इसमें भी हम क्या देखते हैं कि जब ह्यूमन कैपिटल पे हमने पैसा लगाया है तो यहाँ पर प्लांट से ज़्यादा, फैक्ट्री से ज़्यादा, फैक्ट्री और मशीनरी से ज़्यादा जो इंसान का जो नॉलेज है वह काम में ज़्यादा आ रहा है। जो इंसान कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, किस प्रकार से उसके पास जो नॉलेज है इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, ये जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन क्षेत्र है। Not only do the more educated and the healthier people gain through higher incomes, society also gains in other indirect ways, because the advantages of more educated or a healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated or given healthy care. In fact, human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital. Human resource can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset. But a large population need not be a liability. It can be turned into a productive asset by investment in human capital. For example, by spending resources on education and health for all, training of industrial and agricultural works in the use of modern technology, useful scientific researches, and so on. अगर पॉपुलेशन ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, हायर एजुकेशन करेगा, हेल्थ में इन्वेस्ट करेगा, तो नेचुरली है जो पॉपुलेशन है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप बढ़ जाएगा। किस प्रकार से अपने आप बढ़ेगा? भी ऐसा भी हो सकता है कि जो यहाँ पर इंजीनियरिंग करता है, डॉक्टरी करता है, वह अब्रॉड जाकर नौकरी करेगा। तो यहाँ पर ब्रेन ड्रेन तो हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने का। जब ये व्यक्ति यहाँ से अब्रॉड जाता है तो वह वहाँ जाकर सेटल होता ज़रूर है, लेकिन अपने परिवार को साथ में नहीं लेकर जाता। जाते वक्त वो यहाँ से अकेला जाता है और अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए वहाँ से जो कमाता है वह पैसा अपने घर भेजता है। इस प्रकार से बाहर का पैसा हमारे देश में आता है। ये एक बहुत बढ़िया ज़रिया हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का, कमाने का। वैसे ही अगर हम किसी ज़मीन में अगर हम पैसा लगाते हैं तो ज़मीन मतलब अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उस प्रॉपर्टी को सही तरीके से डेवलप करते हैं। एक हमने कोई दूर गांव में एक बड़ा सा प्लॉट ले लिया जो कि बंजर सा पड़ा है, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, कोई खेती बाड़ी नहीं हो रही है, वहाँ पर अगर हमने कोई एक पार्क खोल दिया, वाटर पार्क खोल लिया, कहीं से पानी का बंदोबस्त कर लिया, बढ़िया सा वाटर पार्क खोल लिया, तो किस प्रकार से आपने इस बंजर सी पड़ी ज़मीन पर पैसा लगाकर उसे और पैसे कमाने का ज़रिया बना लिया। वैसा ही इंसान भी होता है। इंसान पे अगर हमने पैसा लगाया, सही ढंग से पैसा लगाया है, उसके एजुकेशन को लेकर, उसके हेल्थ को लेकर, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है, एक बहुत बड़ा एसेट बन जाता है। अभी तक का
लोग क्या सोचते थे कि जो पॉपुलेशन जो है वो है एक लाइबिलिटी है। जो मैंने आपको जो वीडियो भेजा है, जो डिबेट भेजा है, इस डिबेट में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री का मानना है या उनका कहना है कि हमने पॉपुलेशन को रोकना है। हमारी जो पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर ग्राफिकली देखा जाए तो जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो कई सालों से एक प्रकार से स्टेबल हो गया। अगर आप अपने पिताजी के परिवार के बारे में जानोगे तो कम से कम एक परिवार में 4 से अधिक सदस्य आप पाओगे। 4 भाई होंगे, 2 बहनें होंगी, या 2 भाई 2 बहन होंगे, या 4 भाई 3 बहनें होंगे। ऐसे बड़ा परिवार आप पाओगे अधिकतम। लेकिन आज के ज़माने में हम क्या देखते हैं कि आपके कितने भाई हैं? बड़े मुश्किल से आपका एक भाई या एक बहन होंगी, या फिर आप एक इकलौते संतान होंगी। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन जो है वो एक प्रकार से डाउनवर्ड ग्राफ में चल रहा है। अगर हम इसी प्रकार से डाउनवर्ड ग्राफ में जाते हैं तो फिर क्या होगा, बहुत जल्दी हमारे पास यंग जो पॉपुलेशन है वो नहीं होगी। हमारे पास बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा होंगे और जवान लोग बहुत कम होंगे। जो आज चाइना का हाल है और जो आज यूरोपियन कंट्रीज़ का जो हाल है, यूरोप में हमारे युवाओं को नौकरियां क्यों मिल रही हैं? क्योंकि वहाँ पर जो यूरोपीय लोग हैं उनकी जो बड़े मुश्किल से उनके पास एक संतान हुआ करती थी, बड़े मुश्किल से एक बच्चा पैदा करते हैं वो, और वहाँ पर काम ज़्यादा है, लोग कम हैं, तो नेचुरली हमें वह अपने देश से वहाँ पर बुलाते हैं काम करने के लिए। यूएस में जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ के बड़े बड़े पोस्ट पर इंडियंस जाकर अपना कब्ज़ा जमा कर रखा है। बोलने के लिए अमेरिका वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा है, लेकिन अमेरिका के ऊपर हमारे युवाओं जो है वो राज करते हैं। तो अगर हमारे पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ का जो ग्राफ जो है, रेशो जो है ओल्ड एज टू यंग, उसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस आ जाएगा। ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा रहेंगी और यंग पॉपुलेशन कम हो जाएंगी। ये एक डिबेट करने वाला टॉपिक है, इसलिए मैंने बोला है कि वो आप डिबेट ज़रूर देखिए। लेकिन बात ये है कि अगर जो भी पॉपुलेशन हमारे पास में है उसमें हमने हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। द 2 फॉलोइंग केसेस illustrate how people can try to become a more productive resource. Story of साकाल। ये साकाल की कहानी है। यहाँ पर 2 ऐसे कहानी दी गई है जिससे हमें समझाने की कोशिश किया गया है कि अगर पॉपुलेशन को सही ढंग से पढ़ाया है तो किस प्रकार से वह उपयोगी हो सकते हैं। स्टोरी ऑफ साकाल। There were 2 friends, Vilas and Sakal, living in the same village, Simapur. Sakal was a 12-year-old boy. His mother, Sheila, looked after domestic chores. डोमेस्टिक चोर्स मतलब हाउस होल्ड वर्क्स, तो रोज़मर्रे के जो काम होते हैं ना उसको डोमेस्टिक चोर्स कहते हैं। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड। साकाल helped his mother in domestic chores. He also looked after his younger brother Jitu and sister Seetu. His uncle Shyam had passed the matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no job. Bhuta and Sheila were eager to teach Sakal. They forced him to join the village school, which he soon joined. He started studying and completed his higher secondary examination. His father persuaded him to continue his studies. He raised a loan for Sakal to study a vocational course in computers. Sakal was a meritorious student and interested in studies from the beginning. With great vigor and enthusiasm, he completed his course. After some time, he got a job in a private firm. He even designed a new kind of software. This software helped him increase the sale of the firm. His boss acknowledged his services and rewarded him with a promotion. तो पहली कहानी साकाल की कहानी है। इस कहानी में हम क्या देखते हैं, साकाल के माता पिता दोनों ही काम पर है। साकाल की माता जो है वो घर गृहस्थी का काम करते हैं और पिताजी जो है वो खेत पर काम करते हैं। साकाल के चाचा जी है, ताऊ जी है, जो कि पढ़े हैं 10वीं तक का, लेकिन खाली पीली बैठे हैं।
साकल के माँ बाप उसे पढ़ाना चाहते, उसे पढ़ाते भी है, स्कूल में दाखिला देते हैं और साकल काफ़ी अच्छा पढ़ाई करता है। साकल के माता पिता उनको और आगे पढ़ाते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन लेते हैं और साकल को एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है। यहाँ पर वह एक अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं जिससे उसका बॉस बहुत खुश हो जाता है और साकल को प्रमोशन मिल जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से साकल के परिवार ने साकल की वजह से अपनी आर्थिक स्थिति में तरक्की की है। तो पैसा लगाया है एजुकेशन पर, हेल्थ पर, और साकल ने उसको फ्रूटफुल, उसको मल्टीप्लाई कर कर साबित कर दिया। दूसरी कहानी है विलास की, स्टोरी ऑफ विलास। Vilas was an 11-year-old boy residing in the same village as Sakal. Vilas's father, Mahesh, was a fisherman. His father passed away when he was only 2 years old. Who was 2 years old? Vilas. His mother, Geeta, sold fish to earn money to feed the family. She bought fish from the landowner's pond and sold it in the nearby mandi. She could earn only rupees 20 to 30 a day by selling fish. Vilas became a patient of arthritis. His mother could not afford to take him to the doctor. He could not go to school either. He was not interested in studies. He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. After some time, his mother fell sick and there was no one to look after her. There was no one in the family to support them. Vilas too was forced to sell fish in the same village. He, like his mother, owned only a meager income. Meager means very less. तो ये दूसरी कहानी में हम क्या देखते हैं? दूसरी कहानी विलास की है। विलास और साकल ये दोनों एक ही गांव के हैं, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग है। साकल के माता पिता साकल को पढ़ाना चाहते थे और उसे पढ़ाया भी। विकास के जो माता पिता हैं, विकास के पिताजी जो थे वो एक मछुआरे थे, और जब विकास केवल 2 साल का था उनके पिताजी का देहांत हो गया, उनका इंतकाल हो गया, वो गुज़र गए। और विकास की माता है जो कि अपने ज़मींदार के पास में एक तालाब है, उस तालाब में कुछ मछलियाँ होती है, उस मछली को वो जाकर मंडी में बेचती है और इससे वो 20 से 30 रुपये प्रतिदिन कमाती है। केवल 20 से 30 रुपया वह प्रतिदिन कमाती है। और विकास की जो हालत है, फिज़िकल हालत है, वह भी ठीक नहीं है। उसको आर्थराइटिस है, जोड़ों में बहुत दर्द होता है, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाता है। उसकी मम्मा भी उसको स्कूल भेजना नहीं चाहती है, उसको स्कूल नहीं भेजती है। और जब विकास बड़ा होता है वह भी अपनी माँ की तरह मछली बेचना चालू कर देता है और वैसी छोटी मोटी सी जो कमाई है वही कमाता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अगर आपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, तो आपको बहुत छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे जिससे आप कुछ खास कमा नहीं पाओगे। तो यहाँ इस 2 कहानी के द्वारा हमें इस चैप्टर का सबक मिलता है कि पॉपुलेशन एक रिसोर्स तभी बनेगा जब हम उसके ऊपर सही तरीके से ध्यान लगाएंगे, सही तरीके से पैसा लगाएंगे पढ़ाई में और सेहत में। In the 2 cases studies, we saw Sakal went to school and Vilas did not go. Sakal was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the doctor. Sakal acquired a degree in computer programming. Sakal found a job in a private firm, while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a meager income, like his mother, to support a family. In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. This enhanced his total productivity. Total productivity adds to the growth of the economy.
This in turn pays an individual through salary or in some other form of his choice. In case of Vilas, there could not be any education or health care in the early part of his life. He spends his life selling fish like his mother. Henceforth, he draws the same salary of unskilled labor as his mother. Investment in human resource via education and medical care can give high rates of return in the future. This investment on people is the same as investment in land and capital. One invests in shares and bonds expecting higher return in the future. A child, too, with investments made on her education and health, can yield a high return in the future in the form of higher earnings and greater contribution to society. Educated parents are found to invest more heavily on the education of their child. This is because they have realized the importance of education for themselves. They are also conscious of proper nutrition and hygiene. They, accordingly, look after the children's needs for education at school and good health. A virtuous cycle is thus created in this case. In contrast, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep the children in a similarly disadvantaged state. तो साकाल की कहानी में हम क्या देखते हैं? साकाल के माता पिता ने साकाल को पढ़ाया है, लिखाया है, उसे काबिल बनाया है. केवल एजुकेशन ही नहीं, उसको और कंप्यूटर में भी अलग से एजुकेशन करवाया है, जिसकी वजह से उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है जहाँ पर वो तरक्की पर तरक्की करता है. उसके तरक्की के साथ में उसके परिवार का भी तरक्की हो जाता है. लेकिन विलास के जो पेरेंट्स थे वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही वह अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते थे. और किस्मत ने भी विलास के पेरेंट का साथ नहीं दिया. विलास के पिताजी जब विलास बहुत ही छोटा था, केवल 2 साल का था, तभी गुजर गए. और विलास की माताजी जो कि एक मछुआरन थी और मच्छी बेचती थी, वह अपने बच्चे को आगे पढ़ा नहीं पाती थी, जिसकी वजह से विलास के ऊपर काफ़ी परिणाम आया है. उसका सेहत ठीक नहीं रहा, उसे अर्थराइटिस हो गया, वह पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया और अपने माँ की तरह छोटी मोटी कमाई पर ही उसे गुजारा करना पड़ता था. तो हम क्या देखते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा साइकिल है. अगर आप पढ़ाओगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे, आप खुद पढ़ोगे लिखोगे तो आपकी कमाई अच्छी होगी. और आप ही अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, आप अपने सेहत की तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो आपके पास जो है पैसा जो है वो दौलत है वो नहीं आएगा. चांसेस ये है कि वो पैसा नहीं आएगा. Countries like Japan have invested in human resources. They did not have any natural resource. These countries are developed and rich countries. They import the natural resource needed in their country. How did they become rich or developed? They have invested on people, especially in the field of education and health. These people have made efficient use of other resources like land and capital. Efficiency and in technology evolved by people have made these countries rich and developed. तो जापान जैसे देश को अगर हम ले लो, जापान हो या इंग्लैंड है, ये बहुत छोटे देश है. अगर हम उनके फिज़िकल फीचर्स को देखें तो ये आइलैंड्स है, समुद्री द्वीप है और इनके पास ना रिसोर्स है, ना ज़मीन है, ना कुछ है. फिर भी ये बहुत अमीर देश है. क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो एंटरप्रेन्योर्स है, बहुत एंटरप्राइजिंग है, पढ़े लिखे हैं, काबिल है, समझदार है, हेल्दी है. यहाँ की सरकार ने अपने लोगों को पढ़ाने में विश्वास रखा, उनको काबिल बनाने में विश्वास रखा और जो भी उनको रिसोर्स लगता है वो दूसरे देशों से मंगा कर अपने देश में उसका प्रोडक्शन करके उसे वो अपनी कमाई का ज़रिया बनाते हैं. Economic activities by men and women. Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. We saw that
Vilas sold fish and Sakal got a job in the firm. The various activities have been classified into three main sectors, that is, primary, secondary, and tertiary. Primary sector includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry, poultry farming, mining, quarrying. तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये तीन प्रकार के ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? जो ज़मीन से हमें मिलता है, ज़मीन से मिलता है या नेचर से मिलता है, डायरेक्टली जो मिल जाता है उसे हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं. जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरी हो गई, खेती हो गई, माइनिंग्स हो गए, ये डायरेक्टली हमें नेचर से मिलता है, तो इसे हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं. मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, tourism, services, insurance, etc. are included in the tertiary sector. तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. सेकेंडरी क्या है? जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, आप जब उसके आप फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते हैं. जैसे कपास से हमें धागा बनाते हैं, धागे से कपड़ा बनता है, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई. और सर्विसेज देना, ट्रांसपोर्ट करना, फैक्ट्री से इसको लाकर दुकान में बेचना, ये टर्शरी एक्टिविटी हो जाती है. तो इस प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये तीन प्रकार के एक्टिविटीज़ होते हैं. द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हम टर्शरी की बात कर रहे हैं. These activities add value to the national income. These activities are called economic activities. Economic activities are also called market activities. तो टर्शरी एक्टिविटी कितना इम्पॉर्टेंट है, इससे हमें ये जानकारी पड़ती है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है, क्योंकि इससे काफ़ी पैसा जो है, काफ़ी रेम्यूनरेशन, काफ़ी पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है. These activities are called economic activities. Economic activities are also called market activities. Market activities involve remuneration to anyone who performs it. That is, activity performed for pay or profit. These includes production of goods and services, including government service. Non-market activities are the production of for self-consumption. These can be consumption and processing of primary products and own account production of fixed assets. Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women in the family. Women generally look after domestic chores and men work in the fields. Sakal's mother, Sheila, cooks food, cleans utensils, washes clothes, cleans the house, and look after her children. Sakal's father, Bhuta, cultivates the field, sells the produce in the market, and earns money for the family. Sheila is not paid for the services delivered for upbringing the family. Bhuta earns money, which he spends on rearing his family. Women are not paid for their services delivered in their family. The household work done by women is not recognized in the national income. तो अपना जो हिस्ट्री है, अपना जो कल्चरल हिस्ट्री है इंडिया का, यहाँ पर जो लेबर को डिवाइड किया गया है औरतों में और आदमी में, इनमें बहुत फ़र्क आ जाता है. अक्सर जो औरतें होती है उनको घर का जो काम होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, बच्चों की देखभाल करना, घर की साफ़ सफाई करना, घर का ख्याल रखना, ये सब औरतों की जिम्मेदारी बन जाती है. और पैसा कमाने की जिम्मेदारी बन जाती है आदमियों की. मम्मी घर को संभालती है और पापा कमाई करके लेके आते हैं. इस प्रकार से यहाँ पे डिवीज़न होता है. लेकिन मम्मी का काम कोई कम काम नहीं होता. मम्मी के काम को अनदेखा ना कीजिए. अगर एक दिन मम्मी ने घर में काम नहीं किया तो सोच लो क्या क्या नहीं हो सकता. घर में खाना नहीं पकेगा, ठीक है, आप बाहर से बुला लोगे. घर में सफाई नहीं होगी, कपड़े नहीं साफ होंगे,
आपका देखभाल नहीं होगा। हर चीज़ में आप मम्मी को आवाज़ लगाते हो, मम्मी ये कहाँ है, मम्मी वो कहाँ है, आपने कहाँ रखा। सोचिए, लेकिन जब गवर्नमेंट ये कैलकुलेट करती है कि मर्द का कितना योगदान है, औरतों का कितना योगदान है, तो पर कैपिटा इनकम में मम्मियों का काम कहीं पर नज़र नहीं आता। पर कैपिटा इनकम में केवल कितनी कमाई की गई है, कितना पैसा कमाया गया है, केवल इसी पर ध्यान दिया जाता है। गीता, मदर ऑफ विलास, earned an income by selling fish. Thus, women are paid for their work when they enter the labor market. Their earning, like that of the male counterpart, is determined on the basis of education and skill. Education helps individual to make better use of the economic opportunities available before them. Education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. A majority of women have meager education and low skill formation. Women are paid low compared to men. Most women work where job security is not there. Various activities relating to legal protection is meager. Employment in this sector is characterized by irregular and low income. In this sector, there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care, and other social security systems. However, women with high education and skill formation are paid at par with men. Among the organized sectors, teaching and medicine attracts them the most. Some women have entered administrative and other services, including jobs that need high levels of scientific and technological competence. Ask your sister or your classmate what she would like to take up as a career. तो जब गीता विलास की जो मम्मी है वह बाज़ार में जाकर मछली बेचती है, तब जाके घर में कुछ पैसा आता है, तब जाके वो कमाई करती है। तो अक्सर ऐसे बहुत सारे गीता हैं जो घर से बाहर निकलकर जो अनकैरेक्टराइज्ड सेक्टर्स जो होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स जो होते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में क्या होता है, जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, जॉब की कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ पर आपको ठीक ढंग से पैसा भी नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर औरतें पढ़ लिख लेती है, हेल्दी है, तो उनको गवर्नमेंट जॉब्स या कॉरपोरेट जॉब्स मिलता है। यहाँ पर उनकी जो पेमेंट है वो आदमियों के बराबर हो जाती है। फिर यहाँ से वो कमाई जो करती है वो अपने आमदनी बढ़ाने में। तो अगर हमने औरतों को भी अगर पढ़ाया है, लेडीज़ को पढ़ाया है, घर में घर की लड़कियों को पढ़ाया है, तो वह अपना करियर चूज़ कर सकती है। अपने आसपास में हम सब पढ़े लिखे परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारी बहनें भी हमसे ज़्यादा या हमारे जैसी ही पढ़ी लिखी होती हैं। हम उनसे पूछ सकते हैं कि उनके पास में करियर का क्या ऑप्शन है। अक्सर वो या तो मेडिकल लाइन में जाना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, या फिर टीचर बनना चाहती है, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स बनना चाहती है। ये दो फील्ड में गर्ल्स का बहुत मेन रोल रहा है। इसके अलावा भी बाकी सेक्टर्स में हैं, लेकिन काफ़ी कम तादाद में, काफ़ी कम नंबर में। आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। कल के जो क्लास में हम एजुकेशन से आगे फॉलो करेंगे।